Hello students. Now second chapter which is in SOM, that is called as moment of inertia. Okay. Now this is the most another second subtopic in SOM. Okay. From MSBT point of view, total questions are came for marks 16 marks. Total questions are came 16 marks question from this chapter. So now what is meant by moment of inertia? First of all, what is meant by inertia? The inertia is called as restriction to the motions. Okay, the inertia which is called as restriction to the motion, and moment of inertia which is called as whatever we are taking movement. Movement means when we are moving from one place to another place and we are again reached to the original place, that is called as moment of inertia. Okay, so we have to restrict that movement. Hence inertia is come. Okay, the moment of inertia, first of all, inertia meaning is to restrict the motion, which is any rotational, vertical, horizontal. It is depend upon the application of force. And moment of inertia, it will indicate that whatever your movement, either in clockwise or in anti-clockwise, that we have to restrict. Okay, that is meaning of moment of inertia. Okay, so now let us consider a lamina. Okay, which has total area. So here I am writing total area, which is equal to capital A. Okay, let us consider lamina total area capital A is placed on the first quadrant, which has x axis and y axis. In that we take small area A1. Okay, now small area A1 has horizontal distance which is x1 and vertical distance which is y1. That x1 will be indicate that horizontal distance from y to the centroid of A1. मतलब A1 का जो सेंटर रहेगा वहां से ये y तक जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा x1 रहेगा. ठीक है, और y1 क्या रहेगा? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दी बेस, मतलब बेस यहाँ पे कौन है? x एक्सिस से कहां पे A1 का जो सेंट्रोइड है वहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा y1. Similarly, let us consider area number 2, which is again smaller area. From total area we take small area. That's why the symbolic representation which is smaller letter. Okay. Now area 2, it has a horizontal distance x2 from vertical y to the centroid of A2. Similarly, y2 vertical distance from horizontal axis to the centroid of A2. Similarly, A3 again horizontal distance x3 which is from vertical axis, that is y, to the centroid of A3, and y3 which is vertical distance from the horizontal axis, that is called as x, to the centroid of A3. Okay, so here let x1, x2, x3 are the distance of centroid, of area A1, A2, A3 from y axis. Okay, similarly y1, y2, y3 are the distance of y1, y2, y3 are the vertical distance of centroid of area A1, A2, A3 from x axis. Okay, now first moment of inertia, M.I stand for moment of inertia. First moment of inertia of area A1 about y axis. Okay, तो first moment of area about area which is A1, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे एरिया 1 के ऊपर यहाँ से एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो कितना मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो यहाँ से रोटेट होकर फिर से यहाँ पे आ रहा है. देखिए, नहीं तो यहाँ से उसके बेस तक कितना वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? y1. ठीक है, अभी इस एरिया 1 को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? x1. ठीक है, मतलब रोटेट करते समय. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A1 अबाउट y एक्सिस. ठीक है, एरिया A1 का फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या रहेगा? मतलब क्या बोल रहा है? एरिया A1 को यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? x1. बट इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रहेगा ना, वो यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेगा. दैट इज कॉल्ड एज A1 into x1. दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A1 अबाउट y एक्सिस, मतलब ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक उसने जंप किया, फिर से यहाँ पे वही आया है. अगेन आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है. ऑलरेडी आपने फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, मतलब ऑलरेडी आप यहाँ पे आके रुक गए हो, फिर से आप यहाँ पे गए, आपको फिर से यहाँ पे आना है. दैट इज कॉल्ड, मतलब आप सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हैं? रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं.
दैट सेकंड टाइम रोटेट कर रहे, तो उसके पहले हमने फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी क्या हुआ था हमारा, दैट्स व्हाई वी रिटन एज a1 x1, और उसको मल्टीप्लाई x1 क्यों किया, क्योंकि पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के बाद आप फिर से यहाँ पे आ गए, आपको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करना है, तो आगे उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जितना फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था। तो यहाँ पे इसके लिए मल्टीप्लाई क्या किया, इसको x1 से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट a1 x1 स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया a1, देखो एरिया a1 की बात कर रहे हैं, a2 a3 की अभी तक बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया a1 अबाउट y एक्सिस, मतलब क्या किया, ऑलरेडी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी आप फिर से यहाँ पे आ गए थर्ड पॉइंट में, अभी आपको थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करना है, मतलब आप फिर से थर्ड टाइम क्या करो, रोटेट कर रहे हैं, तो अगर थर्ड टाइम आप यहाँ से यहाँ जा रहे, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके पहले आपने कितने रोटेशन किए, वहां पे 2 रोटेशन किए, दैट इज सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू व्हिच इज a1 x1 here, that's why I am writing here a1 x1 here because you already done this moment of inertia, ठीक है। उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके आपको फिर से क्या करना है, रोटेट करना है, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा x1, that's why we multiply again here x1, तो now multiplication which is a1 x1 cube, ओके। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकाला है, ठीक है। आपने अगर एग्जाम प्रिसीजन एक्यूरेसी, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा प्रिसीजन मतलब क्या रहता है, वहां पे अगर आपके पास आउटपुट आप 100 चाहिए, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मशीन रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट मशीन में आपको आउटपुट क्या 100 चाहिए, तो कभी यू नो 100 नहीं देता, वो क्या देता, कभी 99.98, कभी कभी 99.97 देता है, कभी 99.96 देता है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं आप 99.98, ये मतलब दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, मतलब आपको आपका आउटपुट 100 चाहिए था, लेकिन आपको कितना मिला 99.98.97.96, आपको ये आउटपुट, मतलब आउटपुट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है। बोथ आर ऑल 3 आउटपुट्स आर वैलिड, ओके, बट द मोस्ट रिकमेंडेड कौन सा रहेगा, सबसे नजदीक वाला जो रहेगा वो सबसे रिकमेंडेड रहेगा, मतलब आपने 3 प्रैक्टिकल किए, उसमें से आपको 3 रीडिंग आ गए, तो इसमें से सबसे नजदीक वाला जो रीडिंग है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो सबसे नजदीक वाला रीडिंग कौन सा है 99.98, तो दिस इज कॉल्ड आवर हाईएस्ट प्रिसीजन। तो सिमिलरली फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड मोमेंट ऑफ, इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रिसीजन वाला जो रहता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमें कैलकुलेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक एग्जैक्ट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। तो आपको हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा सिलेक्ट करना मालूम है क्या, दिस इज कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो है ना आपका ये टोटल सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका क्या है हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आपको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्रिसीजन मिल सकता है। अगर आपने थर्ड यूज किया तभी भी आपको इससे भी सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी ज्यादा हाईएस्ट प्रिसीजन मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन जब करने जाएंगे ना तब यहाँ पे क्यूब है, देखो तो क्यूब आएगा तो आपका कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए क्या है, फॉर रेफरेंस सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द बेस्ट वे, ठीक है, टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी फिगर, ओके। तो आपको सेकंड में देखो यहाँ पे अलग अलग जितने आप जितने एरिया लेंगे तो हर एक एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होने वाला है, वो कितनी बार क्रिएट हो सकता है, इन्फिनिटी टाइम्स क्रिएट हो सकता है, लेकिन सबसे नियरेस्ट कौन सा लेना है, सबसे हाई प्रिसीजन कौन सा है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको यहाँ से भी आंसर मिलने वाला है, यहाँ से भी आंसर मिलेगा, यहाँ से भी आंसर मिलेगा, सिंस यहाँ से आंसर मिल गया 20, हमारा आउटपुट 30 निकालना था, तो यहाँ से आंसर मिल गया 25, यहाँ से आंसर मिल गया 28 और यहाँ से आंसर मिल गया 29, तो आप बोलेंगे ये थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप सबसे नजदीक है, तो आपने सेकंड ही क्यों लिया, क्योंकि सेकंड में स्क्वायर है और स्क्वायर का कैलकुलेशन हम इजी वे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, कैलकुलेशन का प्रिसीजन जो आउटपुट जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो क्या करेगा 30 से थोड़ा कम आ सकता है, तो सबसे रिकमेंडेड कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, व्हिच इज सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सिमिलरली फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A2, ये एरिया 1 के लिए था, सिमिलरली एरिया A2 के लिए, मतलब ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तभी उसका वैल्यू क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया A2 into x2 करेंगे, देखो पहला A2 into x2 फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के बाद आप यहाँ पे आ गए, फिर से सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पहले यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है A2 into x2, आपको फिर से मूवमेंट लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी मूवमेंट लेते ना
कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, x2 डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए आपने क्या किया, x2 से उसको फिर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया आपका आउटपुट आया 8x2²। ठीक है, तो अभी आपको फिर से थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो आप फिर से यहाँ पे आ गए, आपको यहाँ से फिर से यहाँ पे जाना है, बट ऑलरेडी आपने सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पे a2x2² की वैल्यू हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे a2x2²। ओके, अगेन a2x2² लिखने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, x2 डिस्टेंस कवर किया है, तो हियर अगेन मल्टीप्लाई विद x2 यू विल गेट a2x2³। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ते जाएंगे वैसे आपकी वैल्यू स्क्वायर, पहला विदाउट स्क्वायर था, सिंगल टर्म था, विद स्क्वायर विद क्यूब, बाद में क्या होता है विद x⁴ होगा ऐसा। ठीक है, अगेन तो यहाँ पे रिकमेंडेड कौन सा है आपका, सेकंड ही है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली एरिया A3 है। ठीक है, तो अभी ये तो हर एक एरिया का इंडिविजुअल था। ठीक है, हमने इतने टॉपिक में क्या सीखा है, मोस्ट रिकमेंडेड कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंफिनिटी भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा है, सेकंड ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में के लिए इजी आता है, इसके लिए। नाउ अभी क्या करना है, ये अलग अलग एरियाज के थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें क्या किया, होल बॉडी के मतलब टोटल एरिया जो है उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। दैट्स व्हाई सम ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल एरिया अबाउट y एक्सिस। ऑल एरिया मतलब a1 a2 a3, अभी कंसीडर करो यहाँ पे इनफाइनाइट एरियाज है, इसके अंदर a4 यहाँ पे रहेगा, a3 यहाँ, a5 यहाँ पे रहेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेने वाला हो, तो यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिक रिलेशन ऑफ I, so that is called as moment of inertia। I is called as moment of inertia, that is called as M.I। किसके एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस है, इसके लिए I के बेस में क्या लिखा मैंने, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है a1 x1², सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया नंबर 2, सिमिलरली सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया नंबर 3। ऐसा कब तक चलते जाएगा, जब तक आप क्या कितने एरियाज है उसके अंदर, अब यहाँ पे 3 एरिया लिखा है, तो यहाँ पे 3 तक रुक सकता था, लेकिन मेरे क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट एरियाज है तो मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, इन सब को कंबाइन करने के बाद एक अरिथमेटिक फॉर्मूला दैट विल बी क्रिएटेड, दैट इज सम, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ a into x²। ओके, जैसे यहाँ पे 1 रहेगा तो a1 x1, यहाँ पे 2 आएगा तो a2 x2। ओके, सिमिलरली फॉर सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल एरिया अबाउट x एक्सिस, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे y एक्सिस में था, मतलब ये एरियाज यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पे y एक्सिस की तरफ जा रहे थे। सिमिलरली अगर यही एरियाज अगर इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया अबाउट x एक्सिस में, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेंगे। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक, सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने वाले, y1 y2 y3। तो यहाँ से जो सेम कॉन्सेप्ट था यहाँ तक पूरा सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, मन में जहां जहां पे x1 लिखा है ना, वहां पे सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, y1 y2 y3। x1 जहां पे लिखा है, जहां पे x1 है वहां पे जाएगा y1, जहां पे x2 है वहां पे जाएगा y2, जहां पे x3 है वहां पे जाएगा y3। ठीक है, ऑल रिमेनिंग कॉन्सेप्ट सेम। तो ये इतना सब लिखने के बाद, ये होने के बाद आपको ये आउटपुट मिला था। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम y के लिए अप्लाई, x एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे ना, सिर्फ चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे जहां जहां पे y था वहां पे होगा x, और जहां पे x था वहां पे होगा y, ऑपोजिट होने वाला है सब। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ क्या x लिखना था, यहाँ पे लिखा मैंने I टू द बेस x, बेस में लिखा है x। ठीक है, इज इक्वल टू a1 x1 की जगह पे क्या लिखना है y1, तो y1² प्लस a2 x2 की जगह पे y2, x3 की जगह पे y3, xn की जगह पे yn, बाकी एरियाज आर सेम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, अलग कुछ नहीं है, सम ऑफ एरिया x² सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, y²। तो अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ a x² एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, दिस इज सम ऑफ a y²। अंडरस्टूड? Okay. Second concept, which is concept of radius of gyrations. Okay. Radius of gyrations का सबसे important मीनिंग क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला डायरेक्ट बाहर करना नहीं है, फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ वो भी समझ में आना चाहिए।
तो अभी तक हमने क्या सीखा था, एक लैमिना था, दिस इज आवर लैमिना, ओके, दिस इज कॉल्ड आवर लैमिना। तो लैमिना के ऊपर मतलब इट हैज अ एरिया, टोटल एरिया विच इज कॉल्ड एज कैपिटल ए, ओके। तो इसके अंदर में अलग अलग एरिया, स्मॉल एरियाज कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज A1 A2 A3, ठीक है। एक्स एक्सिस है और ये लैमिना एक्स एक्सिस को क्या है, वर्टिकल में ऐसे रखा है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ऐसा हमारा ये है, दिस मार्कर इज अ लैमिना, आई एम टेकिंग वर्टिकल टुवर्ड द एक्स एक्सिस, ओके। तो लैमिना के ऊपर हमने एक एक एरिया कंसीडर किया है। तो एरिया 1 का डिस्टेंस कितना है, y1, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलर एरिया 2 का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलर एरिया 3 का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑलरेडी मालूम था, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो दैट इज I एक्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ a y स्क्वायर। यहाँ पे एरियाज कितना है, 3 है, दैट इज सम, दैट इज a1 y1 प्लस, बिकॉज ऑफ सम वी आर राइटिंग प्लस, a2 y2, सॉरी हियर वी हैव टू राइट y1 स्क्वायर प्लस a2 y2 स्क्वायर प्लस a3 y3 स्क्वायर, ओके। सो हमने ये यहां तक अभी सीखा था। बट रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या रहता है, देखो ये तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस आई एक्सेस आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस इज इक्वल टू a1 y1 स्क्वायर प्लस a2 y2 स्क्वायर प्लस a3 y3 स्क्वायर। अगर मैं एक और एरिया यहाँ पे कंसीडर करता हूँ a4, तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड होगा, प्लस a4 y4 स्क्वायर, इतना ही ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है, 3 है, तो यहाँ तक हम स्टॉप होने वाले, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या, देखो अभी ये लैमिना है ना, ऐसा वर्टिकल है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको ऐसा शिफ्ट किया और हॉरिजॉन्टल वे में किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये लैमिना कन्वर्ट होगा इस टाइप में, ठीक है। मतलब जैसे ये पहले ऐसा था, हमने इसको कन्वर्ट करके ऐसा किया, दैट इज दिस पार्ट इज हॉरिजॉन्टल टू दिस एक्स एक्सिस, मतलब ये दोनों को एक, हर दोनों को क्या है, एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो अभी पैरेलल बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने ये लैमिना वर्टिकल रखा था तभी यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग थे, y1 y2 y3, ये लैमिना ऐसा था तभी, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3 था, ठीक है। अभी ये यहाँ पे टिल्ट होने के बाद ऐसा किया, ठीक है। तो टिल्ट होने के बाद ऐसा आया, तो यहाँ पे क्या आया, दिस सरफेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे आपने हॉरिजॉन्टली किया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y1 y2 y3 क्या हर एक के डिस्टेंस क्या है, सेम है। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ही ऐसा रहता है, अगर आप कोई भी पार्ट को एक ऐसे पोजीशन में टिल्ट करो, वहां पे आप कोई भी एरियाज अगर कंसीडर करेंगे तो उसका हर एक एरिया का वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स एक्सिस में इसके लिए, अगर हर एक एरिया का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस इट शुड बी सेम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब पार्ट को एक ऐसे पोजीशन में शिफ्ट करना है, तो वहां पे कोई भी एरिया ले लो, अगर आप यहाँ पे एरिया ले लो, 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 तो यहाँ पे एरिया ले लो, इन सब का एरिया का वर्टिकल डिस्टेंस अभी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस था इसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम इट्स बेस, वो क्या रहने वाला है, ऑलवेज सेम रहने वाला है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। सो यहाँ पे क्या आने आएगा फिर, देयरफॉर जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, आज नाउ वी टिल्ट this lamina to one such position then we get same distance, that distance is not a vertical distance, then we get same vertical distance of all area from ground, that is called as x axis is same। तो यहाँ पे ये क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आप डायरेक्टली y भी लिख सकते हैं, or you can directly specify another letter, that letter is called as k, and that k is called as radius of gyration।
तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में चेंजेस क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ आई एक्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ ए वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ ए के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, सम ऑफ ए के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे चेक करो स्मॉल ए का क्या होगा, हर एक तो एरिया यहाँ पे क्या है, हर एक का वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ सम ऑफ एरिया डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कैपिटल ए, बिकॉज हर एक एरिया का डिस्टेंस ही सेम है, तो यहाँ पे सम ऑफ एरिया विच कैन बी रिटन एज ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर आई एक्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू के स्क्वायर। So you have to find out the value of k, that is ixx divided by a is equal to k square. Now take square root on both side, square root on both side, and you will get square root of ixx upon a is equal to k. So this is the your required formula for radius of gyration, which is k is equal to square root of ixx upon a is equal to k. ठीक है, नाउ सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलरली फॉर वाई वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या था, सम ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। सो नाउ आई वाई वाई व्हेन वी आर शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे चेक करो, अभी यहाँ पे चेक करो, अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो डायग्राम कैसे क्रिएट होगी, एक अपना वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है, दिस योर वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई तो एक लैमिना रहेगा, उसका एक एरिया, यहाँ पे एरिया 2 और यहाँ पे क्या रहेगा एरिया 3, इन सब का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या रहने वाला है x3, यहाँ पे कुछ तो रहेगा a2, तो यहाँ से यहाँ रहेगा x2, तो यहाँ से यहाँ क्या रहेगा x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक ऐसा पोजीशन शिफ्ट करना है, वहां पे सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कैसे में कर रहा हूँ, y y, तो कैसा पोजीशन क्रिएट होगा, तो यहाँ से एरिया 1 का, एरिया 2 का और एरिया 3 का, इन सब का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, x1 x2 x3, दैट इज x1 x2 x3 which is equal to can be written as a k. Therefore Iyy is equal to sum of a into k square. ठीक है, therefore sum of a can be written as a, therefore Iyy is equal to a into k square. Again we have to find out the value of k. Same concept as we apply here, that is square root of Iyy divided by a. So this is your required answer. This is the radius of gyration for xx, so I which is equal to kxx is equal to square root of ixx divided by a, and this is radius of gyration for yy axis which is equal to square root of iyy divided by a. So this is your concept of total radius of gyration as we discussed here. Okay.